अच्छा जी, मेरे जी ना एक और ईमेल भी आई थी जो कि है टॉक्सिक टीचर्स से रिलेटेड। हाय रिदा, आई होप यू आर डूइंग फाइन। आई थॉट आई विल आल्सो शेयर माय स्टोरी विद यू। यस, आई वुड लव दैट। स्टोरीज तो हमारी फेवरेट चीज है ना यार। सो व्हेन आई वाज इन 9th grade, one day me and my friends thought that we will go for outing. I live in small city in Pakistan. Actually, we all had vans for transport from school because the school was bit far from city. But that day we had medical camp and there were no classes on that day. So when we got free, vans were late and we thought let's just go to home by foot. तो आपको स्कूल आपका दूर था बट स्टिल यू डिसाइडेड कि आप पैदल जाएंगी घर. ओके, इट वाज अ बिट फार. ओके, in between there was a small park as well, so we thought it would be great. अच्छा, तो आप लोगों ने कहा कि चलो हम थोड़ा घूमते फिरते जाएंगे, पार्क में बैठ जाएंगे, थोड़ा सा घर रिलैक्स करके पहुंचेंगे. ओके, फेयर इनफ. My parents are very strict about these things, like going out with friends. They didn't allow me, and I think I kind of get them why now, but back then I would get so mad for this. हाँ, ऐसा ही है बचपन में, जब आप छोटे होते हो आपको इतनी बातें समझ नहीं आती. जिस तरह नाइट स्टेज अक्सर पेरेंट्स नहीं अलाउ करते, मुझे भी यूनिवर्सिटी तक नाइट स्टेज नहीं अलाउ थे. यूनिवर्सिटी जाके मैं उसके बाद से फिर मैं एक दो फ्रेंड्स जो बहुत अच्छी थी उनकी तरफ था, बट नाइट स्टेज नहीं अलाउ थे. फोन जो मुझे यूनिवर्सिटी में जाके मिला था, तो उसमें आपको समझ नहीं आती, बट अब आप जब सोचते हो तो आपको लगता है कि वाकई ये ठीक चीजें थी, ऐसे ही होना चाहिए. So that day it was just that we thought we would walk to our home. So we were going by road and there I saw my van driver and he saw us and he knew I was with these girls and we were going somewhere. So he did not stop us, did nothing, just passed by and I thought maybe he did not saw me. Okay, like आपको लगा कि like obviously उन्होंने कुछ आपको ना रोका ना कुछ, वो चले गए चुप करके. You assumed के आपके ड्राइवर ने आपको नहीं देखा. Okay. What he did next is that he called my father and said that your daughter went somewhere. She's not here when I came to pick. My parents panicked and called our teachers and they started to find us. Okay, like सब घबरा गए guys, सब घबरा गए. तो बेसिकली शायद आपके जो ड्राइवर थे उन्होंने शायद वाकई आपको नहीं देखा था. अच्छा, दे स्टार्टेड टू फाइंड अस. माय टीचर्स, आई डोंट नो व्हाई, बट दे सेड टू माय फादर दैट दे वेंट टू पार्क एंड सॉ मी एंड माय अदर थ्री फ्रेंड्स रोमिंग अराउंड विद सम बॉयज. एंड माय फादर वाज अबाउट टू लूज इट. ओह माय गॉड, ये टीचर्स क्यों ऐसे कहेंगी? बॉयज, इनको लगता है कोई मसला था आपके साथ, कोई मसला था इनको. While all this was happening behind your back, we were enjoying our little trip and my other three friends lived on one side and I lived a bit far from there. So they first dropped me to my home and then they went back to their home. Like आप लोगों को अंदाजा ही नहीं है कि पीछे क्या कुछ हो रहा है और आप लोग अपनी पार्टी कर रहे हो. अभी पता लगेगा आपको बेटू. My mother is a teacher and she was in school when she heard all this, that I went missing and she rushed back home and I was at home. आपकी अम्मा बेचारी भागी भागी घर पहुंची है और आगे आप बैठी है, चिल कर रही हैं, चिप्स खा रही हैं आगे बैठी. She called my dad and told him. That evening when my dad came back home, he was so furious by the thing that I was with some boys. यार सोचो आपका बाप पे शक कर रहा है एवं. इमेजिन यार, दैट्स सैड. और ये तो बात भी ऐसी है, अब आप कैसे प्रूफ करो यार. अपनी बात आपकी एक टीचर बोल दी है, आप जितना भी कह लो अब्बा टीचर को ट्रस्ट करेगा. That's sad. And this was first time in my life that such thing was being mentioned. For like I would never do such thing, even though all my life I studied in co-education, but there were never boys in my life. And this time it was made such a big deal when nothing was actually true. Oh my god, I know. और आप भी इस सिचुएशन में हो और आपके पेरेंट्स भी, और एक 9th क्लास की बच्ची है, वो कैसे अपने पेरेंट्स को यकीन दिलाए. दैट्स scary. My father was like, you broke my trust and all that. Then later on they went to meet my teacher. They put the whole blame on my best friend that she took me with her. बेसिकली आई थिंक आपकी टीचर को ना आपकी और आपकी फ्रेंड की दोस्ती से मसला था, तो वो आप दोनों का पत्ता साफ कराना चाह रही थी, तलाक कराना चाह रही थी आप दोनों की. She forced me to go with them and then my parents were like, just don't be friends with her. Even teacher kind of forced my best friend also to break friendship with me. तो बेसिकली आपके टीचर को आप दोनों की दोस्ती से मसला था, लेकिन उन्होंने कितना गंदा तरीका किया यार. वो कुछ और कर लेती, वो कुछ और करके कर लेती. इस तरह आपके अब्बा के सामने आपका खराब कर दिया और ऐसा ट्रस्ट खराब किया कि अब ये तो फिर कितना मुश्किल हो जाए इसको दोबारा से
करना भी सही. Those teachers and the madam in the school gave me such a big trauma that I thought I could never build my parents' trust again. At that time, I was only 14 or 15, and that was all a shock for me. Oh my God. Till this day, I could not mention my best friend in front of my family, even though I am still in contact with them, sometimes meet, but I feel like I'm doing something wrong even when I meet her because it's behind my parents' back. I know यार ये टीचर्स का कसूर है, सारा वो खराब कर दिया यार. ये इतना उनको उनको उनने सोचा नहीं इस बारे में कि एक छोटी सी उनका मजाक या उनकी एक हरकत जो है लाइफ टाइम के लिए सीन क्रिएट करिए. कोई ऐसा तो नहीं आप दो दोस्तों में खाली कर रहे हो जो कभी सामने ही नहीं आएगा यार. एक बाप के सामने एक बेटी का इंप्रेशन खराब कर रहे हो. नॉट गुड. टीचर्स की भी तो कोई ट्रेनिंग नहीं होती ना यार. टीचर्स को कोई ट्रेनिंग मिले, कोई समझाए. हमारी टीचर्स भी वो बनती हैं जो कुछ नहीं कर सकती हैं, वो टीचर्स भी बन जाती हैं. फिर वो ऐसे अपने छोटे छोटे बातों को ईगो का इशू बना के शायद इस तरह के काम करती हैं. आई डोंट नो, बट वेरी सैड. आई डोंट नो व्हाई दोस टीचर्स डिड दैट इवन दो दे देमसेल्फ वर फीमेल्स एंड दे डिड दिस टू मी. After that, I just stopped asking my parents for permission for anything like going to trips and all that. अब मैं ना इसको एज अ पेरेंट समझने की कोशिश कर रही हूँ क्योंकि ऑब्वियसली मैं ना अब हर सिचुएशन को ऐसे रिलेट करती हूँ कि एज सलार की अम्मा मुझे क्या करना है. मैं अब इसको भी इसी तरह देख रही हूँ कि मेरे साथ अगर ऐसी सिचुएशन हुई तो मैंने सलार को कैसे हैंडल करना है. यही है कि आई थिंक अगर हम थोड़ा न्यूट्रल होके, क्योंकि पेरेंट्स की भी कोई खास इतनी नहीं है, कसूर ज्यादा टीचर्स का इस सिचुएशन में. बट एज अ पेरेंट आई थिंक हमारी ऑब्जर्वेशन बहुत ज्यादा स्ट्रांग होनी चाहिए कि हम देखें कि बच्चे की जो बॉडी लैंग्वेज है वो उसकी बात के साथ मैच कर रही है. लाइक ट्रस्ट वाइज भी कि अगर मेरा बच्चा कह रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया तो उसकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है. कितने अच्छे एक्टर हो जाएंगे बच्चे, इतने अच्छे नहीं हो सकते. तो थोड़ी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग करें, थोड़ा करना पड़ेगा. आई थिंक खुद पे काम करना पड़ेगा कि बच्चे कह रहे हैं कि मैंने किया है तो आपको उनकी क्या लग रहा है. लाइक अब मुझे लगता है कि आपके अब्बा ने इस तरह से कहा होगा तो आपने ना इतना तब खुद को डिफेंड करने की कोशिश नहीं की होगी कि नहीं नहीं मैंने ऐसा नहीं किया. एक दो दफा कहा होगा शायद आपने, बट फिर आपने ज्यादा नहीं कहा होगा. आप जिस तरह आप कह रही हो आप ट्रिप की परमिशन भी नहीं लेती, तो फिर आपने कहा होगा कि बस ठीक है यार मेरे पेरेंट्स बस ट्रस्ट खराब हो गया. इस तरह से दुखी हो गई होंगी आप. तो आपके पेरेंट्स को उस पॉइंट पे थोड़ा सा होना चाहिए कि यार हमारी बच्ची बेचारी इतनी दुखी हो गई है, इसने किया नहीं किया. अब आपको ज्यादा बेहतर पता आपके पेरेंट्स किस टाइप के अंडरस्टैंड करेंगे नहीं करेंगे, कर सकते हैं नहीं कर सकते. तो इफ यू थिंक कि आपके पेरेंट्स थोड़ा सा अब्बा थोड़ी सी लचक है उनके अंदर सुनने की, तो अपने अब्बा के साथ आप थोड़ा सा डिस्कस कर सकती हो. अगर अब्बा के साथ नहीं कर सकती थोड़ा सा अम्मा के साथ कर लो. थोड़ा आपका भी थोड़ा दिल हल्का होगा कि मैंने अब्बा तक बात पहुंचा दी है कि मैंने नहीं किया. अक्सर ना हमारा ब्रिज जो है अम्मा होती है अक्सर रिलेशंस में. अब्बा तक पहुंचने का रूट अम्मा से निकल के जाता है. अम्मा को थोड़ा सा कहो कि ऐसा कुछ भी नहीं था, इतनी पुरानी बात होगी बट अभी तक मेरे आई थिंक अबाउट दैट. तो आप ना थोड़ा सा मेरा ऐसे मैं बस क्लियर करना चाहती हूँ कि ऐसा कुछ भी नहीं था. तो थोड़ा सा आपके शायद ताल्लुकात बेहतर हों अपने अब्बा के साथ. बट बेटर आप के रिलेशन कैसे अपने अब्बा के साथ, के अब्बा किस टाइप के हैं. उसके अलावा मुझे इससे इतनी फनी स्टोरी याद आ गई है. लाइक जब मैं एफएससी में थी आई थिंक, तो मेरी ना फ्रेंड होती थी. हम दोनों ना कंबाइंड स्टडी करते होते थे. लाइक मैं उसके घर जाके पढ़ती होती थी ना. तो एक दिन उसने मुझे सही बात भी नहीं याद कि हुआ क्या था, बट आई थिंक उसकी कोई फ्रेंड थी तो उसने कहा उसकी तरफ चलते हैं, उसकी तरफ से हो कराते हैं. हमारे कॉलेज डिफरेंट थे बट हमारे घर बहुत पास थे, कॉलेजेस हमारे डिफरेंट थे. शी सेड कि उसके घर से होकर आते हैं या कुछ इस तरह का. तो मैंने कहा हाँ चलो. वो थोड़ा दूर रहती थी, मुझे आइडिया नहीं था. तो हम लोग वहां से वापस आए तो मेरी अम्मा ने पूछा आज काफी लेट आई हो, कहाँ गई थी या क्या इस तरह का. तो मैंने कहा हाँ बस ऐसे ही हो गया था बहुत टाइम पढ़ाई में टाइम लग गया या वट एवर ना. तो उनको अम्मा को झूठ बोलने के बाद फिर मैंने साथी को कहा एक तो इतना चल के आए, इतना दूर आगे गए थे चल के, तो मैं तो टांगों में दर्द होने लग गया. तो और साथ ही अम्मा ने मुझे देखा कि कहाँ गई थी इतना चल के. तो अब मेरी आदत थी मैं अपनी अम्मा से हर बात ना शेयर करती होती थी. तो अब मैंने ये सिचुएशन हुई तो अब मुझे समझ नहीं आई. मैंने बातों में बता दिया खुद ही कि मैं गई थी ऐसे. तो फिर मुझे बताना पड़ा ऑब्वियसली कि मैं कहाँ गई क्या हुआ. तो मुझे डांटा नहीं, बट ये शायद डांटा था मुझे ये भी नहीं याद. बट इस तरह से हुई थी सिचुएशन. तो बाकी मैंने जो पहले शूट कर चुकी हूँ मैं सारी वीडियो मैंने आप लोगों को बताया, मैं दोबारा कर रही हूँ. वो थोड़ी बातें मिस भी होगी होंगी डेफिनेटली, थोड़ी सी एनर्जी भी कम होगी, सलार भी उठ गया है एंड मुझे भूख भी लग रही है, मेरे सर में भी दर्द हो रहा है, बहुत बैड सिचुएशन हो चुकी है. सो आई होप आप लोगों को ये वीडियो जैसी भी थी अच्छी लगी होगी. अगर आप लोगों की कोई स्टोरी है डू शेयर विद मी, मुझे बहुत अच्छा लगेगा. और मुझे अच्छा लग रहा है इतना डिफरेंट स्टोरी, इसी बहाने हम लोग कनेक्ट कर रहे हैं थोड़ा सा. और अपना बहुत सारा ख्याल रखें. आई विल सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो. टेक केयर. अल्लाह हाफिज.